ہم آپ کو مسجد نبوی کی تاریخ سناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو 14 دن تک بنو عمرو بن عوف میں ٹھہرے۔ ابتدا میں جہاں نماز کا وقت ہوتا آپ وہیں نماز پڑھ لیتے۔ پھر آپ نے مسجد بنانے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ نے بنو نجار کے سرداروں کو بلا بھیجا اور ان سے فرمایا مجھ سے اپنے اس احاطے کا سودا کر لو۔ اس پر انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اس کی کوئی قیمت آپ سے نہیں لیں گے بلکہ اللہ تعالی سے اجر لیں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس احاطے میں کھجور کے درخت، مشرکین کی کچھ قبریں اور کھنڈرات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے درخت کاٹ دیے گئے، مشرکین کی قبریں اکھاڑ دی گئیں اور کھنڈرات ہموار کر دیے گئے۔ قبلہ کی دیوار میں کھجور کے درختوں کی لائن لگا دی گئی اور دائیں بائیں پتھروں کی دیواریں بنا دی گئیں۔ اس دوران وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر یہ شعر پڑھتے تھے۔ اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة۔ اے اللہ، آخرت کی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی اہم نہیں، انصار اور مہاجرین کو معاف فرما۔ نافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں مسجد نبوی کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی اور اس کے ستون کھجور کے تنے تھے۔ مسجد نبوی میں پہلی بار توسیع اس وقت کی گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے۔ اس وقت تک مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی۔ آپ نے چوڑائی میں 40 ہاتھ اور لمبائی میں 30 ہاتھ اضافہ فرمایا۔ اس طرح مسجد مربع کی شکل اختیار کر گئی۔ اس کا کل رقبہ 2500 مربع میٹر ہو گیا۔ البتہ قبلے کی طرف مسجد اپنی پہلی حالت پر ہی رہی۔ اس کی بنیاد پتھروں کی تھی اور دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ ستون کھجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے۔ چھت 7 ہاتھ اونچی تھی اور یہ اضافے والی زمین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے خرید کر وقف کی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتنہ ارتداد رونما ہوا، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لشکر روانہ کرنے میں مصروف رہے، چنانچہ انہیں مسجد میں توسیع کا موقع نہ مل سکا۔ البتہ کھجور کے تنوں سے بنائے گئے دور نبوی کے ستون کھوکھلے ہو گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو بدل دیا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ آپ کے دور میں مسلمان بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ آپ سے گزارش کی گئی اے امیر المومنین مسجد میں توسیع ہونی چاہیے۔ اس پر آپ نے فرمایا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ ہم مسجد میں توسیع کریں گے تو میں کبھی اضافہ نہ کرتا۔ چنانچہ آپ نے 17 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع و تعمیر کا کام شروع کر دیا اور انسانی قد کے برابر بنیادیں پتھر سے بنوائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچی اینٹوں اور کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی تھی۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے ستون کھجور کی لکڑی کے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس میں کچھ اضافہ نہ کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اضافہ تو کیا مگر اسے دور نبوی کے انداز ہی میں کچی اینٹوں اور کھجور کی شاخوں سے بنوایا، البتہ ستون لکڑی کے بنوا دیے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تعمیر اور توسیع کا کام کیا تو انہوں نے مسجد کے باہر ایک چبوترا سا بنوا دیا، اسے بطیحہ کہا جاتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد کی کسی توسیع میں یہ مسجد ہی میں شامل کر دیا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شور و غل کیے بغیر نہ رہ سکے یا اونچی آواز سے بات کرنا چاہے یا شعر پڑھنا چاہے وہ مسجد سے نکل کر اس چبوترے پر آ بیٹھے۔
गोया इस चबूतरे की तामीर का मकसद मस्जिद नबवी को शोर व गुल से बचाना था, क्योंकि मस्जिद नबवी के आदाब में ये बात खास तौर पर दाखिल है कि इसमें आवाज ऊंची न की जाए। फिर सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का दौर आया। आपने 29 हिजरी में मस्जिद नबवी में तौसी कराई और तामीर भी नई कराई। इसमें किबला, शिमाल और मगरिब की जिहाद में इजाफा किया। किबले की तरफ एक बरामदे का इजाफा किया। किबले की दीवार उस जगह बनवाई जहां वो आज है। अब तक इस तरफ कोई इजाफा नहीं हुआ। मगरिब की तरफ भी उन्होंने एक बरामदे का इजाफा किया। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की ये तामीर नक्शो निगार वाले पत्थरों से हुई। छत सागवान की खुशबूदार लकड़ी की डाली गई। अलबत्ता मकसूरा कच्ची ईंटों ही से बनाया गया। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की तौसी और तामीर के बारे में मुत्तलिब बिन अब्दुल्ला बिन हंतब फरमाते हैं, 24 हिजरी में जब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बने तो लोग उनसे मस्जिद नबवी में इजाफे का मुतालबा करने लगे। मस्जिद की तंगी की शिकायत करने लगे। जुमे के दिन लोग गलियों में नमाज पढ़ते थे। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने असहाब शूरा से मशवरा किया। सबने इस बात पर इत्तेफाक किया कि मस्जिद को गिराकर इसमें इजाफा कर दिया जाए। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने जोहर की नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर चढ़े अल्लाह की हम्दो सना बयान की। फिर फरमाया, ऐ लोगों, मेरा इरादा है कि मैं मस्जिद नबवी को गिराकर इसमें इजाफा करूं। अल्लाह की कसम, मैं गवाही देता हूं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो शख्स अल्लाह ताला की रजा के हुसूल की खातिर मस्जिद बनाए, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं। और फिर इस मसले में मेरे लिए उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु नमूना और मुक्तदा है। उन्होंने मुझसे पहले मस्जिद नबवी में इजाफा फरमाया और तामीर नौ भी फरमाई। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाना और दानिशमंद सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम से भी मशवरा किया है। वो सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मस्जिद को गिराकर नए सिरे से बनाया जाए और इसमें तौसी की जाए। सब लोगों ने इस काम की तारीफ की और नेक दुआएं दी। अगले दिन आपने कारीगर बुलाए और खुद इस काम की निगरानी फरमाई। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु हमेशा रोजा रखते थे, रात भर नमाज पढ़ते थे और मस्जिद से बाहर नहीं जाते थे। आपके हुक्म से वादिये नख्ल में साफ शुदा चूना तैयार किया जाता था। इसको तामीर में इस्तेमाल किया जाता था। इस नेक काम की इब्तिदा रबीउल अव्वल 29 हिजरी में हुई और काम 30 हिजरी मुहर्रमुल हराम के शुरू में मुकम्मल हुआ। इस तरह इस काम में 10 माह लगे। वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में मदीना मुनव्वरा के गवर्नर सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह मुकर्रर हुए। खलीफा ने उन्हें मस्जिद नबवी की तौसी और तामीर का हुक्म दिया। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने 88 हिजरी में तामीर शुरू की। 91 हिजरी में ये काम मुकम्मल हुआ। मगरिब की जानिब 20 हाथ और मशरिक की जानिब 30 हाथ का इजाफा किया गया। उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना के हुजरे भी मस्जिद में शामिल कर दिए गए। शिमाल की जानिब भी इजाफा किया गया। जदीद तामीर नक्शो निगार वाले पत्थरों से की गई। सुतून खोखले पत्थर से बनाए गए। दरमियान में लोहा और सीसा डाला गया। 2 छतें डाली गईं, एक ऊपर दूसरी उसके नीचे। निचली छत सागवान की लकड़ी से तैयार की गई। मस्जिद नबवी में मीनार सबसे पहले वलीद की इस तौसी ही में बनाए गए। इब्ने ज़बाला वगैरह की रिवायत है कि सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने मस्जिद नबवी की तौसी और तामीर की तो 4 मीनार भी बनाए। हर कोने में एक मीनार बनाया गया। मेहराब भी इस तौसी में बनाया गया। मस्जिद की दीवारों पर संगे मरमर, सोना और रंगदार ईंटें लगाई गईं। इसी तरह सुतूनों के बालाई हिस्सों और दरवाजों की चौखटों
और छत पर सोने से मुलम्माकारी की गई। नीज मस्जिद के 20 दरवाजे बनाए गए। महदी अब्बासी का दौर 161 हिजरी में शुरू हुआ। 161 हिजरी में महदी हज करने गया। हज अदा करने के बाद मदीना मुनव्वरा गया और जाफर बिन सुलेमान को मदीना मुनव्वरा का गवर्नर मुकर्रर किया। उसे मस्जिद नबवी की तौसी का हुक्म दिया। इस काम में उसके साथ अब्दुल्लाह बिन आसिम बिन उमर बिन अब्दुल अजीज और अब्दुल मलिक बिन शबीब गस्सानी को भी मुकर्रर किया। इस मर्तबा शिमाली जानिब इजाफा किया गया। महदी ने मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द कुछ और घर खरीद लिए। इनमें सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु का घर भी था। इस घर को दारे मुलैका कहा जाता था। शुराहबील बिन हसना रजी अल्लाह अन्हु का घर भी शामिल किया गया। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु का घर भी खरीदा गया। इस घर को दारुल कुर्रा कहा जाता था। ये सब घर मस्जिद के इहाते में शामिल कर दिए गए। 656 हिजरी में अब्बासी खिलाफत का खात्मा हुआ। उसके बाद मदीना मुनव्वरा की हुकूमत मिस्र के बादशाहों के हाथ आ गई। ये बादशाह मस्जिद नबवी की तामीर में खास दिलचस्पी लेते थे। इनमें सबसे ज्यादा तवज्जो सुल्तान अशरफ कातिबाई ने दी। जब 886 हिजरी यानी 1481 ईस्वी में रमजानुल मुबारक की 13वीं रात मस्जिद नबवी में आग लग गई तो सुल्तान कातिबाई ने मस्जिद की उमूमी तामीर शुरू कर दी। इसकी तकमील 888 हिजरी रमजानुल मुबारक के आखिर में हुई। सुल्तान अब्दुल मजीद का दौर 1265 हिजरी में शुरू हुआ, 1277 हिजरी तक रहा। मिस्र के बादशाहों के बाद उस्मानी खुलाफा ने 923 हिजरी में मस्जिद नबवी का इंतजाम संभाला। 377 साल तक मस्जिद नबवी की इमारत कातिबाई वाली ही कायम रही। इसके बाद इसके बाज़ हिस्सों में टूट फूट शुरू हो गई। उस वक्त के इमाम हरम दाऊद पाशा ने सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल को लिखा कि मस्जिद नबवी की तामीर नौ की जरूरत है। सुल्तान अब्दुल मजीद ने फौरन अपना एक काबिल एतिमाद नुमाइंदा एक माहिर इंजीनियर के साथ भेजा। ये 1265 हिजरी की बात है। उन्होंने मदीना मुनव्वरा वालों से मिलकर अच्छी तरह तहकीक की और वापस जाकर सुल्तान अब्दुल मजीद को रिपोर्ट दी कि वाकयातन मस्जिद नबवी की तामीर नौ की जरूरत है। अब सुल्तान ने कमर हिम्मत बांध ली। हलीम आफंदी को तामीर की जिम्मेदारी सौंपकर मदीना मुनव्वरा भेज दिया और उसके साथ जरूरी साजो सामान, रकम, माहिरीन फन, संग तराश और दूसरे कारीगर भी रवाना किए। जब ये सब चीजें मदीना मुनव्वरा पहुंच गईं, तो माहिरीन पहाड़ों में बिखर गए, यहां तक कि उन्हें बेहतरीन मादनी पहाड़ मिल गया। ये अकीक की तरह सुर्ख रंग का था। उन्होंने पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े काटे और जाए तामीर पर ले आए। इस तरह उस्मानियों ने मस्जिद की तामीर शुरू की। वो इसका एक हिस्सा गिराते और उसकी तामीर करते ताकि लोगों को मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने में दिक्कत न हो। मकसूरा, मिंबर शरीफ, मगरबी दीवार, मेहराब नबवी, मेहराब सुलेमानी, मेहराब उस्मानी और बड़े मीनार के सिवा सारी मस्जिद दोबारा तामीर की गई। क्योंकि ये चीजें बहुत मजबूत, खूबसूरत और दुरुस्त हालत में थीं, इसलिए उन्होंने इन्हें इनकी हालत पर बरकरार रखा। कारीगरों ने इस तामीर में बेमिसाल जिद्दत और खूबसूरती का मुजाहरा किया। इमारत की तकमील के बाद इन्होंने मस्जिद के तमाम फर्श पर और किबले वाली दीवार के निस्फ तक संगे मरमर लगाया। सुतूनों को खूब चमकदार बनाया और इन्हें ऐसी पॉलिश की जो पत्थर के रंग से मिलती थी। छत के तमाम गुंबदों में नक्शो निगार बनाए। रोज़े अतहर के सुतूनों पर सफेद और सुर्ख संगे मरमर लगाया ताकि वो दूसरे सुतूनों से मुमताज नजर आए। इस काम में 3 साल लगे। इस इमारत में एक नया दरवाजा बाबे मजीदी के नाम से बनाया गया। ये दरअसल मस्जिद के अंदर था। अब सऊदी तौसी में इसके मुकाबिल जगह में इसी नाम से एक दरवाजा बना दिया गया है।
मस्जिद की जमीन का आखिरी हिस्सा इब्तिदाई हिस्से से ऊंचा था, लेकिन इमारत मजीदी में इस सब को बराबर कर दिया गया है। मीनारों की बुनियादें पानी तक खोदी गईं और उनकी बुनियाद स्याह पत्थरों से बनाई गई। ये इमारत 1277 हिजरी में मुकम्मल हुई। अब भी इस इमारत का जो हिस्सा बाकी है वो अपनी मखसूस शक्ल और तर्ज तामीर की वजह से मुमताज नजर आता है। जब सऊदी तौसी मुकम्मल हुई तो इस इमारत मजीदिया का जुनूबी हिस्सा, जिस पर छत भी पड़ी हुई थी, अपनी मजबूती और खूबसूरती में मुमताज होने की बिना पर इसी तरह बाकी रखा गया। इसकी पैमाइश 4056 मुरब्बा मीटर थी। अब सऊदी दौर में तौसी और तामीर सुनिए। जब से सऊदी हुकूमत कायम हुई है, उसने हरमैन शरीफैन के इंतजामात के सिलसिले में बहुत ज्यादा तवज्जो दी है। इसकी सबसे बड़ी दलील वो तौसियात हैं जो सऊदी दौर में हरम मक्की या मस्जिद नबवी में सरंजाम दी गई। रमजानुल मुबारक 1368 हिजरी यानी 1951 ईस्वी में जलालतुल मलिक अब्दुल अजीज आले सऊद ने एक बयान नश्र किया। इसमें उन्होंने मस्जिद नबवी में तौसी का अज़्म जाहिर किया। इसी साल 1951 ईस्वी में इब्तिदाई काम सरंजाम दिए गए। मसलन मस्जिद के शिमाल, मशरिक और मगरिब में इर्द गिर्द के इलाके खरीद कर उनकी इमारतें गिराई गईं और उन्हें हमवार मैदान बना दिया गया ताकि मस्जिद और इर्द गिर्द की सड़कों की तौसी हो सके। इसी तरह मजीदी इमारत के शिमाली जानिब के बरामदे भी गिरा दिए गए। उनका रकबा 6246 मुरब्बा मीटर था। इनके साथ 6024 मुरब्बा मीटर जगह मजीद शामिल करके नई तामीर और तौसी के लिए 12270 मुरब्बा मीटर जगह मुहैया हो गई। इमारत मजीदिया में से छतदार जुनूबी हिस्सा इसी तरह रहने दिया गया। इसकी पैमाइश 4056 मुरब्बा मीटर थी। इस तरह मस्जिद की कुल पैमाइश 16326 मुरब्बा मीटर बन गई। नवंबर 1952 ईस्वी में तामीर का आगाज हुआ और ये तामीर शाह अब्दुल अजीज की वफात के बाद शाह सऊद के दौर में भी जारी रही। इस तामीर पर 5 करोड़ रियाल खर्च हुए और ये तौसी अक्टूबर 1955 ईस्वी में मुकम्मल हुई। जलालतुल मलिक सऊद बिन अब्दुल अजीज आले सऊद ने 5 रबीउल अव्वल 1375 हिजरी यानी अक्टूबर 1955 ईस्वी को इस तौसी शुदा इमारत का इफ्तिताह किया। इस इमारत की खुसूसियात ये हैं। पहली सऊदी तामीर मुस्ततील थी। इसकी लंबाई 128 मीटर और चौड़ाई 91 मीटर थी और ये इमारत मजीदी इमारत के शिमाली जानिब सहन में बनाई गई थी। इस सहन का मुकम्मल फर्श ठंडे संगे मरमर से लगाया गया। सहन की मशरकी और मगरबी दोनों जानिबों में 3 बरामदे बनाए गए। सहन के दरमियान में मशरिक से मगरिब तक एक लंबा सिलसिला बनाया गया। इसमें 3 बरामदे थे। इस सिलसिले की मशरकी जानिब में बाबुल मलिक अब्दुल अजीज खुलता था और इसकी मगरबी जानिब बाबुल मलिक सऊद था। इनमें हर दरवाजा 3 छोटे दरवाजों से मिलकर बनता था। ये एक दूसरे के साथ मुत्तसिल थे। इस सहन के शिमाली जानिब भी एक सिलसिला था। इसमें 5 बरामदे थे। इनमें से हर बरामदे की चौड़ाई 6 मीटर थी। शिमाली दीवार में 3 दरवाजे बनाए गए। कंक्रीट से बनाई गई ये सऊदी इमारत इस लिहाज से भी मुमताज थी कि इसका मजबूत और बालाई ढांचा 232 सतूनों पर खड़ा किया गया था। सतूनों और दीवारों की बुनियादों की गहराई 7.5 मीटर थी। पहले मस्जिद में 5 मीनार थे। उनमें से 3 गिरा दिए गए। मशरकी और मगरबी कोनों में 2 और मीनार बना दिए गए। इनमें से हर मीनार की बुलंदी 72 मीटर रखी गई। इस तरह मस्जिद नबवी के चारों कोनों में 4 मीनार बन गए। फिर अमन व अमान की फरावानी और आमद व रफ्त व रिहाइश की वाफिर सहूलतों की बिना पर हुज्जाज और जायरीन की तादाद बढ़ गई और मज़कूरा सऊदी तौसी के बावजूद मस्जिद नबवी तंग महसूस होने लगी। इसलिए शाह फैसल ने मस्जिद की मगरबी जानिब नमाज के लिए मजीद जगह मुहैया करने का फरमान जारी किया।
चुनाचे इस तरफ की इमारत गिरा दी गईं और उनके मालिकान को 5 करोड़ रियाल से ज्यादा मुआवजा दिया गया और वहां शेड तामीर किए गए। इनका रकबा 35,000 मुरब्बा मीटर था। इन शेडों की तामीर का काम 1393 हिजरी यानी 1973 ईस्वी में शुरू हुआ। ये शेड सऊदी हुकूमत की दूसरी तौसी में खत्म कर दिए गए। दूसरी सऊदी तौसी 1405 हिजरी ता 1414 हिजरी यानी 1984 ईस्वी ता 1994 ईस्वी तक जारी रही। ये तौसी खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह फहद बिन अब्दुल अजीज हफिज़हुल्लाह के हाथों अंजाम पाई और मस्जिद नबवी की पूरी तारीख में ये सबसे बड़ी तौसी शुमार की गई है। इस तौसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके बाद नमाजियों की गुंजाइश पहली सऊदी तौसी समेत मुकम्मल मस्जिद नबवी की गुंजाइश के मुकाबले में 9 गुना है। इसके अलावा इस तौसी की दीदाजेब इमारत दिलों को मोह लेती है और अक्लों को हैरत में डाल देती है। इस तौसी का मकसद ये था कि ये नमाजियों और जायरीन की ज्यादा से ज्यादा मुमकिन तादाद को समो सके। खास तौर पर रमजानुल मुबारक और हज के दिनों में कोई तंगी न हो। नीज मस्जिद में मौजूद जायरीन को हर सहूलत और आराम हासिल हो और ये तामीर आइंदा कई सदियों तक इन अजीम मकासद के लिए काफी हो। हकीकत यह है कि ये तौसी सिर्फ शाह फहद के लिए नहीं बल्कि हर उस मुसलमान के लिए फख्र का सबब है जो मस्जिद नबवी को इस शानदार हालत, आरामदेह वुसअत और हर मुमकिन सहूलतों वाली देखना चाहता है। शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने इस तौसी का संगे बुनियाद जुमतुल मुबारक के दिन 9 सफर 1405 हिजरी यानी 2 नवंबर 1984 ईस्वी को रखा। इब्तदाई काम मुहर्रमुल हराम 1406 हिजरी यानी 1985 ईस्वी में शुरू हुआ, जबकि इसकी तकमील 1414 हिजरी यानी 1994 ईस्वी में हुई। इस तौसी से मुराद वो अजीमुशान इमारत है जिसने पहली सऊदी तौसी को 3 अतराफ से घेर रखा है। मस्जिद का अगला हिस्सा अपनी पुरानी हालत पर ही बाकी है ताकि मजीदी इमारत कायम रहे और वो हिस्सा साफ अलग नजर आता रहे। इस नई तौसी के बरामदे, सुतून, छतें और नक्शो निगार पहली सऊदी तौसी के ऐन मुताबिक हैं। लिहाजा अब ये दोनों इमारतें एक इमारत बन चुकी हैं। बैरूनी दीवारों पर ग्रेनेड लगा दिया गया है। ये एक इमारती पत्थर है। इस तौसी में 6 नए मीनार बनाए गए हैं। ये इमारत तहखाना, जमीनी मंजिल और छत पर मुश्तमिल है। जमीनी मंजिल ही असल इमारत है। इसकी पैमाइश 82,000 मुरब्बा मीटर है। इस इमारत के पूरे फर्श पर संगे मरमर लगाया गया है। इस मंजिल की बुलंदी 1255 मीटर है। इस मंजिल में 2104 सुतून हैं। ये सुतून एक दूसरे से 6-6 मीटर दूर हैं ताकि 6x6 मीटर के दालान बन सके और जिस जगह छत गुंबद की सूरत में है वहां सुतूनों का दरमियानी फासला 18 मीटर है ताकि 18x18 मीटर के दालान बन सके। नई तौसी में इस किस्म के 27 दालान हैं और इनकी छत मुतहर्रिक गुंबदों की सूरत में है ताकि गुंबद हटाने से तबई रोशनी और हवा हासिल हो सके, बशर्ते कि मौसम इसकी इजाजत दे। गुंबद का निस्फ अंदरूनी कुत्र 7.35 मीटर है। एक गुंबद का मजमूई वजन 80 टन है। गुंबद की अंदरूनी सतह लकड़ी से बनाई गई है। इस पर हाथ से खोदकर मुख्तलिफ डिजाइन बनाए गए हैं। बाज मकामात पर खालिस सोने की बारीक पतरी भी लगाई गई है। अलबत्ता गुंबद की बैरूनी सतह ग्रेनेड के तौर पर जर्मन सिरामिक से बनवाई गई है। ये गुंबद बिजली की कुव्वत से हरकत करते हैं। छत के ऊपर भी नमाज की अदायगी के लिए वसी सेहन बनाए गए हैं। इनकी पैमाइश 58,250 मुरब्बा मीटर है। मुकम्मल छत की पैमाइश 67,000 मुरब्बा मीटर है। काबिल इस्तेमाल छत पर
सफेद यूनानी संगमरमर लगाया गया है, जो कि खास तौर पर धूप वाली जगहों के लिए मुहैया किया गया है। छत पर करीबन 90,000 अफराद नमाज पढ़ सकते हैं। छत के ऊपर 11,000 मुरब्बा मीटर जगह पर बरामदे भी बनाए गए हैं। इनकी बुलंदी 5 मीटर है। छत को इस तरह तामीर किया गया है कि जरूरत के वक्त इस पर दूसरी मंजिल भी तामीर की जा सकती है। मस्जिद नबवी के जुनूबी, शिमाली और मगरबी अतराफ में वसी सहन तामीर किए गए हैं। इनकी पैमाइश 2,35,000 मुरब्बा मीटर है। इनके कुछ हिस्से पर सफेद ठंडा संगमरमर लगाया गया है, जो गर्म नहीं होता, और बाकी हिस्से पर ग्रेनाइट का फर्श लगाया गया है। इन सहनों में रोशनी के लिए मसनूई पत्थर और ग्रेनाइट वाले 151 सुतून हैं। इन पर बड़े बड़े ग्लोब लगाए गए हैं। इन सहनों के इर्द गिर्द मजबूत दीवार बनाई गई है। इनमें 4,30,000 अफराद नमाज पढ़ सकते हैं। इन सहनों में कई मकामात पर सीढ़ियां बनाई गई हैं, जो सहन के नीचे बने हुए गुस्ल खानों, वुजू के मकामात और जायरीन के लिए आराम गाहों की तरफ जाती हैं। इस तरह सहनों के नीचे वसी बस स्टैंड भी बनाए गए हैं, गोया सहनों के नीचे 2 मंजिलें हैं। ये दूसरी सऊदी तौसी मस्जिद नबवी की तारीख की सबसे बड़ी तौसी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब मस्जिद नबवी में नमाजियों की गुंजाइश पहली सऊदी तौसी से 9 गुना ज्यादा हो चुकी है। पहली सऊदी तौसी के बाद मस्जिद में 28,000 नमाजियों की गुंजाइश थी, लेकिन दूसरी तौसी के बाद नमाजियों की गुंजाइश 2,68,000 हो चुकी है। इनमें छत के 90,000 नमाजी भी शामिल हैं। अगर हम सहनों को भी शामिल कर लें कि जिनमें 4,30,000 अफराद नमाज पढ़ सकते हैं, तो नमाजियों की मजमूई तादाद 6,98,000 से भी बढ़ जाती है।